Hello students, myself Halimuddin Sheikh. Today I am here presenting a new lesson in a class 9, tissue. Tissue. The Hindi meaning is utar, tissue. What is tissue? I'd like to see this. What is cell? Cell is the unit of biological activity, delimited semi-permeable membrane and capable free from other living system, is self-reproductive. This is the simple definition of cell. This is the simple definition of cell. Cell is the unit of biological activity, delimited semi-permeable membrane and capable of free from other living system, is self-reproductive. Is self-reproductive. But here, tissue, a group of cell. What is this? A group of cell. A group of cell, their structure, function, shape, size are same. A group of cells, their structure, function, shape, size and structure are same, is called tissue. But all types of tissue cannot be same. There are different categories of tissues because of there are different categories of cells, different structures of cells, different functions of cells, different shape, size of cells. So as like tissue cannot be found in the same, but tissue are simply different types. First of all, we are discussing here today, the tissue is divided into how many parts? 2 parts. How many parts? 2 parts. First of all, understand what is the tissue? A group of cells, their structure, function, shape, size are same, is called tissue. How many types of tissue? There are 2 types of tissue. How many types of tissue? 2 types of tissue. One is the plant tissue and other is the animal tissue. One is the plant tissue and other is the animal tissue. First of all, we are discussing today here what is plant tissue and what is the classification of plant tissue. First of all, we are discussing here today classification of plant tissue. सबसे पहले आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि वनस्पत ऊतकों के वर्गीकरण क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, वनस्पत ऊतकों के वर्गीकरण. कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया प्लांट टिश्यू को. तो अब यहां पर हम देखिए, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, द स्टडी ऑफ सेल, नॉट द सेल, द स्टडी ऑफ tissues means the study of same types of cells, their structure, function are the same, is called histology. Or the study of tissues is called histology. And here in the case of histology, we have simply discussed there are 2 types of tissues. One is the plant tissue and other is the animal tissue. आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे एक प्लांट टिश्यू का और फिर एनिमल टिश्यू का. तो सबसे पहले आज का हमारा अध्ययन होगा क्लास 9 सिलेबस का कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे एक बार फिर जो है कि प्लांट टिश्यू, वनस्पत ऊतक. तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. वनस्पत ऊतकों का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है. बच्चे भूल जाते हैं, आप लोग नहीं भूलेंगे, आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे. क्लास 9 के बेस का है, तो आज हमने क्लास 9 का बेस लिया है, क्लास 9 का टॉपिक लिया है, इसलिए जो है
कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर जी आप हायर लेवल पर जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को भी एक दो बार लेक्चर दे दीजिए, स्पीच दीजिए। हमने कहा ठीक है, बाद में आपको क्लास 9th के बेस का लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा, समझिएगा, और बहुत ही सिंपल, वेरी इजी, नॉट बी टफ, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिश्यू? दे हैव प्रोवाइड टू मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। Tissue is provided to the mechanical support of the body. Hence, suppose that cells are conjoined together to form of a tissue. Tissue are conjoined together to form of a tissue system, and tissue system is conjoined to form of the organ, and so many organs are conjoined to form of organ system. And so many organ systems, respiratory system, digestive system, excretory system, reproductive system, so many systems are conjoined together. Means 11 systems have occurred in our body. So many systems have found occur in our body. Since our body is simply be going on, ये सारे सिस्टम हमारे शरीर में एक साथ पाए जाते हैं, तब कहीं जाकर हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। एक भी से, बट ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इज मेड बाय द टिश्यूज, ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इज मेड बाय द टिश्यूज। टिश्यू इज नॉट a unit of the body, no, the unit of body is the cell, but the majority of cells are combined, their structure, their function, their shape, size are same, is called tissue, is called tissue. Here we are discussing plant tissue. You see this structure, and make this diagram is carefully, make this diagram is carefully, make this classification is carefully. Plant tissue we are discussing in the medium of the Qadri coaching classes. So plant tissue are divided into two parts. Plant, not the tissue. Tissue are divided into two parts. What is this? Plant tissue and animal tissue. Plant tissue and animal tissue. टिश्यू को हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हमने कहा कि ये वनस्पति ऊतक है, प्लांट टिश्यू है, और दूसरे को हमने कहा कि एनिमल टिश्यू है, जंतु ऊतक है। तो यहाँ आज हम कह रहे हैं कि न तो हमारे पास वनस्पति ऊतक न तो जंतु ऊतक, हमने इस तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं किया। सिर्फ हमने कहा कि जो प्लांट टिश्यू है, वनस्पति ऊतक, आज हम सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसी प्लांट टिश्यू का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू जो है इसको हमने डिवाइड किया, देयर आर टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। One is the meristematic tissue, second is the permanent tissue. Also write it, okay? One is the meristematic tissue, second is the permanent tissue. How many types of tissue? There are two types of tissue, plant tissue and animal tissue. What is the classification of plant tissue? Plant tissue means one is the meristematic. Plant tissue are divided into two parts. Plant tissue are divided into two parts. First, meristematic tissue, second permanent tissue. Meristematic tissue are divided into three parts. Meristematic tissue are divided into three parts. First, apical meristem. First part, apical meristem, शीर्षस्थ मृदूतक, ऐसा ऊतक जो कि शीर्ष पर पाया जाए, टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट पर पाया जाए। मैं फिगर बना के एक्सप्लेन करता हूं, उसको बोला जाएगा एपिकल मेरिस्टम। एपेक्स पर, एपिकल, एपेक्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम, मध्य में पाया जाने वाला, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ब्रांच पर, स्टेम पर, लीव्स पर पाया जाने वाला। एंड थर्ड, लैटरल मेरिस्टम। थर्ड, लैटरल मेरिस्टम मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are divided into three parts: apical meristem, intercalary meristem, and third, lateral meristem. Okay, clear? So next one, permanent tissue. Here we are discussing permanent tissue. Permanent tissue are divided into how many parts? Two parts. How many parts? Two parts. Permanent tissue are divided into two parts: simple permanent and complex permanent.
simple permanent and complex permanent. Simple permanent साधारण permanent टिश्यू, साधारण simple permanent tissue are divided into three parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Means the simple permanent tissue are divided into three parts. First is the parenchyma, second is the collenchyma, third is the sclerenchyma. Here we are discussing this point. There are three types of the simple tissue are also belongs to the permanent tissue. In these types of tissue, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, it belongs to the simple permanent tissue, and other complex permanent tissue. The complex permanent tissue, very important point, complex permanent tissue are divided into two parts. Complex permanent tissue are divided how many parts? Two parts. First is the xylem and other is the phloem. First is the xylem and other is the phloem. Xylem are divided into four parts. How many parts? Four parts. First, xylem tracheids, xylem vessel, xylem parenchyma, and xylem fiber. How many parts? Four parts. Means once again, permanent tissue are divided into two parts: simple permanent tissue, complex permanent tissue. Simple permanent tissue are divided into three parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And complex permanent tissue are divided into two parts: xylem and phloem. The xylem are divided into four parts: tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. Here is the four parts. First is the tracheids, second is the vessels, third is the xylem parenchyma, and fourth is the xylem fiber. So just like phloem are divided into four parts. What is this? Phloem are divided into four parts. So phloem are divided into four parts. First, sieve tube. Phloem, there sieve tube is the part of phloem. Sieve tube. Second, companion cell. Third, phloem parenchyma. This one is the third. Phloem parenchyma, and fourth, phloem fiber. Understand? Here, the permanent tissue are divided into two parts: simple permanent and complex permanent. The simple permanent divided into three parts: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And complex permanent tissue are divided into two parts: xylem and phloem. The xylem are divided into four parts: tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. And phloem tissues are divided into four parts: phloem, first sieve tube, second companion cell, third phloem parenchyma, fourth phloem fiber. So as like this one is the simple classification of plant tissue. I humble request to you, you are write all these things. Then we have to start to the another point. First of all, you make this note, the classification of plant tissue. You make it, then we have start to the one by one types of tissue. First of all, you make the whole types of these tissues, the structure of this classification of these types of tissue. You make this types of diagram. Then you have to start to the one by one plant tissue, meristematic tissue or permanent tissue or apical, intercalary, lateral, so as like. First of all, you write it. Okay, complete it. Complete this point. Okay. So we have started. Clear? आपकी समझ में आ गया हो? हमने कहा कि आप इसको पूरी तरह से अपने नोट पर उतार लेंगे, बना लेंगे,
फिर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अब वन बाय वन करके। अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, I will start at this point, meristematic tissue. Clear? Any confusion? If you find out any confusion, please also be contact to my WhatsApp number 9919529090. Please contact me. यदि आपको लगता है कहीं से कोई टॉपिक फॉल्ट है तो आप जरूर मुझसे इस नंबर पर क्वेश्चन एराइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। आप कहीं भी किसी भी प्रकार से आपके मन में ये गलती, ये संदेह न रहे कि हमारी समझ में नहीं आया। यदि नहीं आया है तो उसे आप बार बार पूछिए, उसको बताया जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, सो आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश मीडियम। इफ यू टीच इन हिंदी मीडियम, you learn to Hindi medium, so I will also be speaking in Hindi medium. But your medium are English. Since I am speaking here in English, so we are discussing again. अब मैं अगला बिंदु आपको प्रदर्शित करता हूँ। से discussing in this point, meristematic tissue. So there are three types of meristematic tissue: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. So once again, I humble request to you, these topics are things, these whole things are given by the Qadri coaching classes by the Alimuddin Sheikh. So I am here. So explain the meristematic tissue. So you have made this diagram of the meristematic tissue. You subscribe to my channel. Also subscribe, like, share my channel. So here meristematic tissue. So simply suppose that here we have make a diagram. You see this one, a simple diagram are here. Those tissues have occurring in a top portions, in a peak portions here. A types of tissue those who are found, a types of tissue those who are simply occur, a types of tissue those who are simply occur in a peak portion, in a top portion of the plants. This one is the called apical meristem. What is this? Apical meristem. Here all types of tissues those who are occur in a simple way in top portion of this plant. This one is called to the apical meristem. Here apical meristem. Since this one is simply called apical meristem. Clear? Here are apical meristem I have seen. The apical meristem have simply occur to the top portion of the plants, peak portion of the plant, peak position of the plants are roots or as well as branches. शीर्षस्थ मृदुतक कहाँ पाए जाते हैं? यह पौधों के शीर्ष भाग पर, जड़ों में शीर्ष भाग पर, शाखाओं के शीर्ष भाग पर, ये जहां भी पाए जाएंगे वहां पर शीर्ष भाग पर पाए जाएंगे। जड़ें गहराई में नीचे की तरफ धंसती चली जाती हैं तो उनके निचले पोर्शन पर, शीर्ष भाग पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। तना जब लंबाई में सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, लंबाई में जब तना सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते रहने पर यहाँ पर जो टिश्यू पाया जा रहा है उस टिश्यू का नाम हमने क्या रखा है? एपिकल मेरिस्टम। क्या रखा गया? एपिकल मेरिस्टम। शाखाएं जो बटी हुई है, जो अलग अलग पौधे की शाखाएं बटी हुई हैं, उन शाखाओं पर अगर जो है इनके टॉप पोर्शन पर अगर टिश्यू पाया जा रहा है तो उनको भी हम कहेंगे कि जो है यहाँ पर भी जो है एपिकल मेरिस्टम है। तो एपिकल मेरिस्टम या तो जो है टॉप रीजन पर पाया जाएगा या फिर लोअर रीजन पर, या तो एपेक्स में, सूट के टॉप पोर्शन, सूट मींस
तना, तने के शीर्ष भाग पर पाया जाएगा, या फिर रूट मीन्स जड़, या फिर जड़ के रूट जो है टॉप पोर्शन पर पाया जाएगा। तो यहां पर जो पाए जाने वाले टिश्यू हैं उनको कहा गया एपिकल मेरिस्टम, उनको कहा गया एपिकल मेरिस्टम। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम हो गए। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस तरह से सेल में डिवीजन हो रहा है। इस तरह से सेल में डिवीजन हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें डिवीजन हो रहा है दोनों साइड में। ये नहीं कहा कि सिंगल साइड में डिवीजन हो रहा है, ये दोनों साइड में डिवीजन हो रहा है। नोड और इंटर नोड का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं। इसको हमने कहा कि इसको इंटर कैलोरी मेरिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटर कैलोरी मेरिस्टम बोलते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टम बोला जाएगा, इसको इंटर कैलोरी मेरिस्टम बोला जाएगा। एपिकल मेरिस्टम जो टॉप पोर्शन पर पाया गया, मिडिल पोर्शन पर इस साइड में जो पाए जाएंगे, इस साइड में जो पाए जाएंगे, इस साइड में जो पाए जाएंगे, इंटर कैलोरी मेरिस्टम होंगे, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। और तीसरा पार्ट जो होता है वह लैटरल मेरिस्टम होता है। तो ये लैटरल मेरिस्टम ये साइड में इस तरह से पाए जाएंगे, इनको जो है लैटरल मेरिस्टम बोला जाएगा। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से दोनों साइड में पाए जा रहे हैं। आपने वेरी सिंपल मेथड हियर, लैटरल मेरिस्टम। वंस अगेन एक बार फिर आप देखिए, एपिकल मेरिस्टम जो शीर्ष पर पाया जा रहा है, पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जा रहा है, उसको हमने कहा एपिकल मेरिस्टम। ब्रांचेस पर यहाँ पर टॉप पोजीशन पर जो पाया जा रहा है, रूट के टॉप पोर्शन पर जो पाए जाएंगे एपिकल मेरिस्टम। ये बीच में जो पाया जा रहा है उसको इंटर कैलोरी मेरिस्टम। साइड में जो पाए जा रहे हैं उनको हमने कहा कि लैटरल मेरिस्टम है। क्या है? लैटरल मेरिस्टम है। इस तरह से इनका नाम लैटरल मेरिस्टम रखा गया। तो ये लैटरल मेरिस्टम हो गए, इंटरकैलोरी मेरिस्टम हो गए और एपिकल मेरिस्टम हो गए। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टम जो होता है यह स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, स्टेम, रूट, लीव्स, स्टेम, रूट, लीव्स, जड़, तना, पत्ती, स्टेम, रूट, लीव्स, जड़, तना, पत्ती के शीर्ष भागों पर टॉप पोर्शन ऑफ द रीजन, टॉप पोर्शन, जड़, तना, पत्ती के शीर्ष भागों पर पाया जाए, जड़, तना और पत्तियों के शीर्ष भागों पर पाए जाने वाले टिश्यूज को हमने कहा कि एपिकल मेरिस्टम है। क्या बोला गया? एपिकल मेरिस्टम बोला गया। दूसरा देखते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टम। These are simply referred to the node and internodes। गांठें बनाता है, नोड और गन्ना आपने देखा है ना, गन्ने में गांठें होती हैं, पोर होता है। इस तरह से आप फिंगर को देख रहे हैं तो फिंगर में यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दो यहाँ पर है और यहाँ पर, इसको नोड बोला गया और इसको इंटर नोड बोला गया। जो बीच का पोर्शन है उसको इंटर नोड बोला गया, इसको नोड बोला गया। इस तरह से नोड और इंटर नोड का फॉर्मेशन के लिए, मोस्टली नोड के फॉर्मेशन के लिए जो हेल्पफुल होते हैं उसको जो है हम बोलते हैं, उसको इंटर कैलोरी मेरिस्टम बोलते हैं। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्या फॉर्म करती है? नोड, गांठें बनाने का काम करती है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम नोड का फॉर्मेशन करती है। और लैटरल मेरिस्टम जो होते हैं, लैटरल मेरिस्टम सिंपली रूट में, शूट में और ब्रांचेज में, रूट, शूट और ब्रांचेज, इनके साइड में लग करके इनको थिकनेस प्रोवाइड करती हैं। क्या? थिकनेस। और क्या करती हैं?
they have simply provide to the mechanical strength, mechanical support of the plants. पौधों के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स, यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं, और इसके जो यांत्रिक आधार प्रदान कर देने से यह पौधा जो है सामान्यतया आसानी पूर्वक जो है ये खड़ा रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है, यह हमने पार्ट आपको डिस्कस कर दिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है, या जो है सिंपल मेरिस्टम के जो 3 पार्ट बताया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। तो इस तरह से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहा, इसको हमने डिवाइड कर दिया। प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा पैरेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू। मींस अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? परमानेंट टिश्यू। अगला पॉइंट हमारा परमानेंट टिश्यू। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? इफ यू फील टू एनी कंफ्यूजन प्लीज आस्क मी। You have not be listen or not be prepare these things. You simply ask me questions. So our next point, permanent tissue. Permanent tissue. एक बार मैं फिर कार्य कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको अब प्लांट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने बता ही दिया आपको। अब परमानेंट टिश्यू आप देखिएगा, परमानेंट टिश्यू में आपने देखा है, पहला टॉपिक आपको बताया गया है पैरेन्काइमा। दूसरा बताया गया कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा बताया गया स्क्लेरेन्काइमा। चाइना मत पढ़िएगा, गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो टीचर भी गलत बता रहा है, तुम लोग भी गलत पढ़ रहे हो, तो आप लोग गलत नहीं पढ़ेंगे। चाइना पढ़ते हैं, एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। अब ये देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा के ऊपर। ये पैरेन्काइमा क्या होते हैं? आप देखेंगे पैरेन्काइमा स्फेरिकल सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्फेरिकल सेल्स होती हैं। यहां पर आप देखेंगे ये इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है। क्लियर? इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा, इसको बोला गया इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गए, और यहां पर ये इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस सेल के ऊपर जो है थोड़ा ये जो है, इस पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से पाए जाते हैं सेलुलोज के पॉइंट्स हैं, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये पौधों को एक दृढ़ता, मजबूती प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा वे पौधे हमेशा खड़े रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। इस तरह से यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट, जिसको कहा गया यांत्रिक आधार, क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। जैसे हम खड़े हैं, अभी एनिमल टिश्यू में नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ाया जा रहा, फिर मैं एग्जांपल में बता रहा हूं। मैं खड़ा हूं, खड़े होने के लिए मैं किस पर खड़ा हूं? अपने पैर पर खड़ा हूं, बात कर रहा हूं,
बात करने में हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, हमारा माइंड वर्क कर रहा है, हमारा मुंह वर्क कर रहा है, हमारी जीभ वर्क कर रही है, जीवा वर्क कर रही है। तो जितनी भी हमारे पार्ट हैं ये सब वर्क कर रहे हैं, सब एक न एक प्रकार के टिश्यू सिस्टम से अरेंज हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार का अगर टिश्यू सिस्टम पाया जा रहा है, इस प्रकार के टिश्यू सिस्टम को हमने कहा कि ये जो है ये पैरेन्काइमा है। क्या है ये? पैरेन्काइमा। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा आप इसका आसानी पूर्वक। This is simply we call to the basic packing of tissues. Basic packing tissue क्या बोलते हैं इसको? Basic packing tissue. Basic packing tissue. सामान्य रूप से भरण ऊतक की तरह से व्यवहार करते हैं। सामान्य रूप से भरण ऊतक की तरह से व्यवहार करते हैं। It stored food from स्टार्च। किसमें? स्टार्च में, प्रोटीन में, ऑयल्स में। क्या देखा आपने? एक बेसिक पैकिंग टिश्यू है। क्या है? बेसिक पैकिंग टिश्यू है। फैट को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, आयल को स्टोर करते हैं। ये इनके फंक्शन हो गए। किसके फंक्शन हो गए? ये हो गया पैरेन्काइमा का। किसका फंक्शन हो गया? पैरेन्काइमा का। तो इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से आपने देखा कि पौधों के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। जाइलम और फ्लोएम सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जाइलम और फ्लोएम के सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अंडर टिश्यूज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लांट की रिगिडिटी को प्रोवाइड करता है, दृढ़ता को बनाए रखता है। प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक यांत्रिक आधार प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा प्लांट लंबे समय तक वो इरेक्ट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में वो खड़ा रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हो गया पैरेन्काइमा का। अब हम जो है पैरेन्काइमा के बाद अगला बताने चल रहे हैं आपको कोलेनकाइमा। तो ध्यान से देखेंगे पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इन बीनीथ द एपिडर्मिस सेल। एपिडर्मिस सेल के नीचे की कोशिकाएं जो होती हैं वो कोलेनकाइमा होती है। पैरेन्काइमा हो गया, आपने देखा है पैरेन्काइमा के विषय में बताया गया। तो अगला टॉपिक है कोलेनकाइमा का। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा मोनोकाट में मोस्टली ये यूजुअली एब्सेंट होते हैं, और स्टेम हो या फिर रूट हो, स्टेम हो या फिर रूट हो, मोनोकाट का है, वहां पर ये यूजुअली एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर डाइकाट है तो वहां पर ये प्रेजेंट होंगे और हाईली एक्टिव होते हैं। प्रेजेंट होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं। प्रेजेंट हो और हाईली एक्टिव हो, उसका रीजन ये होता है, जैसे अभी आपने कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखेंगे, अभी आपने जैसे कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से एक संरचना तो बनाते हैं, एक संरचना तो इनकी बनती है, इस तरह से एक संरचना बनाते हैं। ऐसे संरचना तो बनाते हैं, बट इन संरचनाओं में अंतर क्या होता है कि यहां पर से यहां पर इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख, दोनों साइड से आप देख रहे हैं इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह से, और फिर यहां से ऐसे ऐसे घूमकर इस तरह से, ये देखिएगा दोनों साइड से स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से ये देखिएगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भरे हुए हैं पूरी तरह से। ये हो गया कोलेनकाइमा। क्या हो गया? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के लिए मैंने आपको बताया, कोलेनकाइमा के लिए मैंने आपको बताया कि कोलेनकाइमा हो गया। और ये कोलेनकाइमा जिसमें मोस्टली इट्स प्रोवाइड टू द मैकेनिकल सपोर्ट। फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी सबके लिए बताया सेम होता है, सबके लिए मैंने बताया सेम होता है, इट्स प्रोवाइड टू द मैकेनिकल सपोर्ट।
It's provide mechanical support. It's provide mechanical support. कोशिका के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करना. It's provide mechanical support due to formation and it's also be provide to the thick end of the cell. कोशिका को मोटा बनाने का थिक एंड ऑफ द सेल, कोशिकाओं को मोटा बनाने का कार्य करते हैं. रिगिडिटी प्रोवाइड करते हैं ना, दृढ़ता प्रोवाइड करते हैं ना, तो कोशिकाओं को मोटा बनाने का कार्य करते हैं. जब कोशिकाओं को मोटा बनाने का काम करते हैं तो इसका मतलब होता है वहां पर सेलुलोज को ले जाकर के स्टोर करेंगे. क्या किसको स्टोर करेंगे? सेलुलोज को. सेलुलोज को स्टोर करेंगे. जब ये सेलुलोज को स्टोर कर देते हैं तो यहाँ पर सेल जो है ये थिक एंड हो जाती है. स्ट्रक्चर आपने देख लिया, फंक्शन आपने देख लिया, तो ये हो गया जो है कोलेनकाइना के विषय में. अब तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइना. इस स्क्लेरेनकाइना जो होते हैं वो लंबाई में ज्यादा होते हैं, इस तरह से लंबे लंबे होते हैं. इस तरह से आपने देखा, इस तरह से लंबाई में हो गए. जैसे जाइलम का बनना हुआ, सिव ट्यूब का बनना हुआ, तो इस तरह से फाइबर का बनना हुआ. यहाँ पर ये काम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए कोलेनकाइना जो है, सॉरी स्क्लेरेनकाइना जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए. और यहाँ पर जो डिवीजन के लिए भी सेल को डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर इनमें तो डिवीजन से हम देख रहे हैं लेकिन बीच में डिवीजन नहीं आपको दिखाई देगा. ये स्क्लेरेनकाइना का होता है, बीच में डिवीजन नहीं दिखाई देगा. और यहाँ पर इसके बीच बीच में डिफरेंशिएशन होते हैं. बीच बीच में सेल के अंदर ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ऐसे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये विभेदन हो जाएगा, अब ये विभेदन हो जाएगा. इस तरह से एक सेल का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन ये डिवाइडेड सेल्स होंगी और ये एक लिगेंड के थ्रू, ये लिग्निनेंट के थ्रू ये जुड़ी होती हैं, जिसके रहते हम ये आसानी पूर्वक कर सकते हैं. ये सेल आसानी पूर्वक ये बेसिक स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. तो आपने देखा कि ये रहा जो रहा, ये आपने देखा कि ये परमानेंट टिश्यू में आपने देखा कि जो है पैरेन्काइना, कोलेनकाइना, स्क्लेरेनकाइना. तो पैरेन्काइना भी बताया गया, कोलेनकाइना भी बताया गया, स्क्लेरेनकाइना भी बताया गया. अब आपका बचता है जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हम जाइलम और फ्लोएम हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे. तो आपसे फिर से हमारा एक बार रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को कादरी कोचिंग क्लासेस, माई सेल्फ इज अलीमुद्दीन शेख, मैं अलीमुद्दीन शेख आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे. आपको जो कमेंट ना आ रहा हो समझ में, जो हमारे लैंग्वेज जो समझ में ना आ रही है उसको पूछिएगा, क्योंकि टोटल बायोलॉजिकल लैंग्वेज है. अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अभी से आप अभ्यस्त हो गए, इन फ्यूचर क्लास 10th में, 11th में, 12th में, नो प्रॉब्लम. वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी आप 9th में आप पहुंच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तो आपको जो है लेबर करना ही पड़ेगा. आपको थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा कि टर्म की जानकारी आपको करनी पड़ेगी. बिना टर्म के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी समझ में बायोलॉजी नहीं आएगी. इसलिए थोड़ा सा समय निकाल करके बायोलॉजी के लैंग्वेज को, बायोलॉजी के टर्म को पढ़िए, सीखिए, जानिए. और जैसे टीचर एक्सप्लेन कर रहा, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा, जिस लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करिए, तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपके को समझ में आएगा. तो इस प्रकार से हम आपको जो है कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं अलीमुद्दीन शेख आप सभी लोगों को जो है एक बार जो है आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए. जो है सब्सक्राइब करिए, अपने शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए. और अपने जो है इष्ट मित्रों से भी कई जो है वो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें उसको, इसलिए कि हम लगातार आपको एक नए नए टॉपिक बताते चले जाएंगे. तो आज हमने कई लंबे लंबे टॉपिक बता दिए. कल हमको अपने नेक्स्ट टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ बताना होगा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तब तक के लिए धन्यवाद.